म्हणजे ट्रान्सफर करून असू दे किंवा कसं पण असू दे, किंवा असं पण असेल समजा असं काहीतरी कंटेनर आपण डिझाईन केलं, इथे पार्टिशन ठेवलेलं आहे, तिथे मुव्हेबल आहे, सुरुवातीला एवढं लिक्विड असेल, पार्टिशनचे मुव्ह किंवा वस्तू जाईल, म्हणजे पार्टिशन इथपर्यंत मूव्ह केलं सरफेस एरिया वाढेल. करेक्ट है? हाँ राइट. सरफेस टेंशन लिखा, उसके अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट, molecules present inside the bulk, molecules present inside the bulk of a liquid, inside the bulk of a liquid, bulk of a liquid experience attractive force, experience attractive force from all the directions, from all the directions, and hence net force of attraction is how much? Zero. And hence net force of attraction is zero. Next point, molecules on the surface of liquid, molecules on the surface of liquid experience a net force of attraction towards the interior, experience the net force of attraction towards interior, due to which they possess more energy or less energy? More energy. They possess more energy and hence are more stable or less stable? Less stable. And hence are less stable. Are less stable. ठीक है? Next point. In order to increase stability, liquids tend to what? Maximize surface area or minimize surface area? Minimize surface area. Liquids tend to minimize surface area by assuming कौन सा shape? Spherical shape. By assuming spherical shape. Correct है? Next point, surface energy. उसमें लिखो, it is the energy required. It is the energy required to increase surface area of liquid, कितना? By 1 unit. To increase surface area of liquid by 1 unit. इसका यूनिट क्या रहेगा? एनर्जी है तो जूल तो रहेगा ही, और ये एक यूनिट एरिया के लिए कि नहीं? हाँ, जूल पर मीटर स्क्वायर. तो लिखो यूनिट 1 यूनिट. उसके नेक्स्ट लाइन पे लिखो इसका यूनिट क्या है? जूल पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट लिखो सरफेस टेंशन इन ब्रैकेट गामा.
सरफेस टेंशन इन ब्रैकेट, ये ऐसा कामा होता है ना। आगे लिखो, इट इज द फोर्स एक्टिंग, it is the force acting per unit length, it is the force acting per unit length perpendicular to the line, perpendicular to the line drawn on, कहाँ पे, on the surface of liquid, drawn on the surface of liquid। इसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर, लिखो आगे, यूनिट न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब लास्ट लिखो, as intermolecular forces increase, this implies surface tension increases। दोनों ऐसे अपवर्ड एरो बना बना के लिखो, intermolecular forces increase, this implies surface tension increases। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस। हाँ, पहले ये लिखो, intermolecular forces decrease and therefore surface tension also decreases। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, टेम्परेचर increase, this implies intermolecular forces decrease, this implies surface tension decreases। समझा क्या, ठीक है। सो दैट इज अबाउट अवर सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी वी आर डिस्कसिंग नाउ, यस, विस्कोसिटी। पहले डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं, लिखो विस्कोसिटी। हाँ, राइट, अब विस्कोसिटी, उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन नहीं हटा दो, इट इज द मेजर, फर्स्ट पॉइंट विस्कोसिटी के अंदर, इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड, हाँ, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू flow of liquid, offered to flow of liquid which arises due to friction between two layers of liquid, friction between two layers of liquid when they slip off over each other, when they slip off over each other। ठीक है, so basically in one word viscosity is what, हाँ, resistance, but better we can say friction। तो जब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड सरफेस के ऊपर हम ड्रैग करते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, रेजिस्टेंस टू मोशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। सही बात है, यहाँ पे उस फ्रिक्शन को क्या बोला जा रहा है, विस्कोसिटी। मतलब जितना रेजिस्टेंस टू फ्लो ज्यादा रहेगा, जितना लिक्विड स्लोली फ्लो करेगा, उतना ही हम बोलेंगे इट इज मोर विस्कस, विस्कोसिटी ज्यादा है। करेक्ट है। अब इसको मैथमेटिकली स्टडी करने के लिए पहले और एक चीज समझनी पड़ेगी। ध्यान से देखो सामने, अभी सपोज दिस इज अ सॉलिड सरफेस जिसके ऊपर लिक्विड फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, एक्चुअली वो चिपका हुआ है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता, वैसे थोड़ा डिस्टेंस में रखा है। एक्चुअली इट इज इन द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। ठीक है, इसका स्पीड या इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, देखो इट इज इन द कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड सरफेस, ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहेगा। इसके ऊपर एक एक करके ये सारे लेयर्स है, ये सब आगे मूव कर रहे हैं। तो ये भी हम लॉजिकली बता सकते हैं, जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे हर एक लेयर का स्पीड कांस्टेंट रहेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। एक के ऊपर एक थोड़ा फास्ट मूव करते हुए नजर आएंगे। करेक्ट। सो लेट अस अज्यूम इन सबका जो डिस्टेंस है, मतलब दो लेयर के बीच का डिस्टेंस, वो कौन सेम है, कितना है, डी जेड है। सब कुछ दे सकते हैं, वर्टिकल है ना, तो
dz है, ठीक है। एंड ये तो जीरो वेलो, मतलब इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है फर्स्ट लेयर की। मान लो इस लेयर की जो वेलोसिटी है, लेट्स से इट इज u, वी फाइंड दैट उसके नीचे वाले की ज्यादा रहेगी या कम, सो लेट्स से इट इज u माइनस, और ऊपर वाले की ज्यादा ना, u प्लस du। तो आप ध्यान से देखो, एज वी आर गोइंग फ्रॉम फर्स्ट लेयर टू सेकेंड लेयर, कितना डिस्टेंस ऊपर गए हम, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय du। सेकेंड टू थर्ड du से ही बढ़ी, वापस थर्ड टू फोर्थ। सो फॉर ईच वी कैन से राइज ऑफ हाइट ऑफ dz, जितना dz ऊपर जा रहे हैं वो सेम अमाउंट से बढ़ रही कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो चेंज है, जो कोई तो अभी पूछ रहा था ना ग्रेडियंट, तो ये वो ग्रेडियंट है, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो कि कितना रहेगा यहाँ पे du बाय dz। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज du ओवर हाउ मच डिस्टेंस dz, so it is du by dz। तो ऐसा फ्लो जिसमें ये du by dz वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिनार फ्लो। एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, मतलब ये कुछ कांस्टेंट नहीं रहता, कुछ भी उलट-पलट चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, इट इज कांस्टेंट, तो हर dz के लिए वो du ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। सच फ्लो इज लैमिनार फ्लो। तो ये लैमिनार फ्लो को मेंटेन करने के लिए, मतलब ये जो वेलोसिटी है एग्जैक्टली ऐसे ही चेंज होनी चाहिए du से। तो इसको अगर मेंटेन करना है ऐसे ही, अगर वो लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर खिसकाना है आगे, तो हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं। जैसे रफ सरफेस पे कोई भी चीज को ड्रैग करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स हमेशा ही लगाना पड़ता है ना, अगर उसके वेलोसिटी को मेंटेन करना है तो। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती हुई जीरो हो जाएगी, मतलब दैट काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू, नहीं रे बाबा, पोटेंशियल हीट। ये कंजर्वेटिव फील्ड है क्या, फ्रिक्शन की अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी, वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी सिमिलरली, और वो अल्टीमेटली रुक जाएगा। सिमिलरली अगर हमने एक्सटर्नली कुछ वर्क नहीं किया तो इट विल स्टॉप। तो अगर हमें इस लैमिनार फ्लो को मेंटेन करना है तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड दे फाइंड दैट दिस फोर्स, ध्यान से देखो अभी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले तो एरिया ऑफ दैट लेयर, सरफेस एरिया, एंड सेकेंड थिंग इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी ग्रेडियंट du by dz। du by dz जितना ज्यादा रहेगा उतना ही हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सही बात है। दोनों को ही अगर कंबाइन किया तो मैथमेटिकली अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने डाल दिया तो कैसे दिखेगा, F इज इक्वल टू eta a du by, where eta is the constant of proportionality, उसी को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये जो भी फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है उसका मेन रीजन क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो ये विस्कोसिटी की वजह से है, इसलिए उस ईटा को क्या नाम दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आ रहा है। तो अभी मेन चीज हमारी यही है कि यूनिट क्या रहेंगे उसके, और वो कैसे वैल्यू होगा, जैसे हमने सरफेस टेंशन में देखा है ना। बताओ यूनिट क्या आएंगे, अभी फोर्स का यूनिट क्या है, इसका हमें नहीं पता, वही ऐसे लिख देते। एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। du बाई dz का क्या रहेगा, du का क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मीटर ना, मीटर मीटर कैंसिल होगा कि नहीं, तो इट विल बी जस्ट सेकेंड इनवर्स, करेक्ट है। जब ये पूरा इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ईटा का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, हाँ, इनटू सेकेंड, करेक्ट है। न्यूटन को अगर और फंडामेंटल यूनिट्स में लिखना है तो इट इज व्हाट, LLT माइनस 2, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, तो केजी तो बचेगा, मीटर इंटू मीटर माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स बचेगा, और वो क्या है, सेकेंड माइनस 2 है, तो ये सेकेंड -1 बचेगा, करेक्ट है। तो दिस इज SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि अगर एटॉमिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं तो जूल बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है कि नहीं, एनर्जी का। फिर हम क्या डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन से। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा जो कि क्या होता है,
पॉइस, हाँ, वन पॉइस, पॉइजोनी करके एक साइंटिस्ट था, उसके ऑनर में ये नाम दिया है, जो कि सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस में किलोग्राम के लिए क्या हो जाएगा, मीटर के लिए क्या हो जाएगा, हाँ, इट विल बी 1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड, तो वही रहेगा ना, करेक्ट है। अब इसको अगर मुझे केजी मतलब एसआई में कन्वर्ट करके लिखना है, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में लिखना है, तो बताओ जरा कितना हो जाएगा, 1 के जगह मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 केजी पर मीटर, हाँ, पर मीटर पर सेकेंड इनवर्स, मतलब पर सेकेंड इनवर्स नहीं, पर सेकेंड 10 हो जाएगा ना। अब देखो हमें स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो सही आएगा कि नहीं। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000, सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय, ये करने से ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम। सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में करना है, इंटू 100 और डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, सेंटीमीटर इनवर्स से मीटर इनवर्स, सही बात है। अब देखो ये सपोज 1 मीटर है, सेंटीमीटर कितने रहेंगे उसके अंदर, 100। मैंने देखा कि 1 सेंटीमीटर में 10 चींटियां खड़ी है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, तो आपके लॉजिक के हिसाब से पूरे मीटर में 10 बाय 100 0.1 चींटी खड़ी रहेगी। आपका लॉजिक यही कहता है, इंटू 100 और डिवाइड बाय 100 समझ के करना चाहिए। देखो सेंटीमीटर इनवर्स से मीटर इनवर्स में जा रहे हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर में जितना चीज बैठता था 1 मीटर में उससे ज्यादा बैठेगा या कम बैठेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा ना। लॉजिक समझो अच्छे से। अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता, इनवर्स नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ सेंटीमीटर टू मीटर मतलब गोइंग फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 100, मतलब वी हैव टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड। तो वहां पे डिवाइड बाय 100, लेकिन जहां पे इनवर्स होता है वहां पे उल्टा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये लॉजिक ऐसे सोच सकते हो कि वी आर गोइंग फ्रॉम से मतलब पर सेंटीमीटर टू पर मीटर, बड़े में जा रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे ये इंटू 100 हो जाएगा। तो अभी हमने क्या क्या कन्वर्ट कर लिया, ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में, सेकेंड इनवर्स तो सेकेंड इनवर्स ही रहेगा। तो सही आपने बताया था क्या, 0.1 केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, समझा क्या? वेरी गुड। बाकी वही फैक्टर्स, जितना इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा उतनी विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, ज्यादा रहेगी। दो लेयर एक दूसरे को ज्यादा चिपक के रहेंगे ना, अगर इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका एक दूसरे के ऊपर खिसकना इजी होगा या डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। सो ग्रेटर द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ग्रेटर विल बी द विस्कोसिटी, सही बात है। और टेम्परेचर वही ना, टेम्परेचर के थ्रू पहले कहां तक जाना पड़ेगा, इंटरमोलेकुलर फोर्स। टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या होगा, कम होगा, तो विस्कोसिटी भी कम होगी। कहने का मतलब याद रखने के लिए अच्छा है, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन वेरी इन द सेम पैटर्न विथ इंटरमोलेकुलर फोर्स एज वेल एज टेम्परेचर, पैटर्न सेम है दोनों का, करेक्ट है। चलो लिख लेते थोड़ा इसके बारे में। क्या लिखा है आपने, डेफिनेशन लिखा ना, हाँ, उसके आगे लिखो लैमिनार फ्लो। हाँ बोलो, हाँ होता है ना, विस्कोसिटी नेचुरल है, फ्रिक्शन नेचुरल है। तो फ्रिक्शन नेचुरल है तो उसके ऊपर अगर तुमने रफ सरफेस पे किसी चीज को धक्का दिया तो नेचुरली वो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद रुक जाएगा ना। अगर तुम्हें उस मोशन को कंटिन्यू करवाना है तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, हाँ एक्सटर्नल फोर्स है, दिस इज नॉट दैट इंटरनल फोर्स। इनफैक्ट इंटरनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए ये फोर्स हम लगा रहे ताकि वो लैमिनार फ्लो मेंटेन होगा। अगर हम ये फोर्स नहीं लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद लिक्विड रुक जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या लिखा, डेफिनेशन लिखा, आगे लिखो लैमिनार फ्लो, उसमें लिखो फ्लो ऑफ लिक्विड लेयर्स ओवर ईच अदर, फ्लो ऑफ लिक्विड लेयर्स ओवर ईच अदर in such a way that
इन सच अ वे दैट, क्या कांस्टेंट रहता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। इन सच अ वे दैट वेलोसिटी ग्रेडियंट इन ब्रैकेट du by dz, in such a way that velocity gradient in bracket du by dz ब्रैकेट के बाहर remains constant। फिर ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर ये एज इट इज नोट करो। मैंने आपको बोला था ना कि इंटरनल सॉल्व करके डाउट लेके आना करके, लाए हो कि नहीं? और पेपर जो परसों हुआ था, हाँ सही बात, सही। हाँ लिखना है ना। पुष्कराज लिखी हो गया क्या? हाँ लिखो ना तो। कुछ गिरा नहीं था ना? इसलिए ऐसे दोस्तों को भरोसा नहीं रखना चाहिए, सब सलाह देंगे पता नहीं, है ना? हाँ जरा बड़बड़ कम करो, नोट करो जल्दी। हाँ बोलो, किसको डाउट है? इसको टेक्निकल डाउट है। अच्छा किस एनर्जी, वो पिछले टॉपिक में था सरफेस टेंशन में, यहाँ पे कौन सी एनर्जी? अरे तुम्हारा डाउट है, क्या पूछ रहे हो आप? हाँ वो पूछा था कि du जो लिखा है, हाँ वो कैसे बढ़ रहा है? हाँ वो एनर्जी मतलब स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। हमने बस वही पूछा। अच्छा अच्छा हो गया था। अरे हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो अभी। एज इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीजेस, विस्कोसिटी increases. Intermolecular force increases. This implies viscosity also increases. और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीजेस, so viscosity also decreases. Temperature increases, intermolecular force decreases, and therefore viscosity also decreases. हाँ बोलो। हाँ लिक्विड के लिए, गैस के लिए वो हाँ बढ़ती है। वो गैस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो फिर उनका फ्रिक्शन बढ़ता है दो लेयर के बीच में, तो विस्कोसिटी बढ़ती है। हाँ बोलो। बिटवीन नहीं, मतलब एरिया, सरफेस एरिया उसका, ऊपर का लो नीचे का लो, सरफेस एरिया तो सही रहेगा। बिटवीन का क्या सवाल मतलब? अभी ये 2-3 पेपर है, कोई भी पेपर का ऊपर का या नीचे का एरिया सही भी तो रहेगा, समझा कि नहीं? ठीक है चलो। हाँ बोलो। हाँ ज्यादा बाउंड होंगे अच्छे से तो एक दूसरे को खिसक में नहीं लेंगे ना, ठेकड़ा दुस्ती। ठीक है, अभी डाउट डिस्कस, समझ में आ गया सबको?
ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ अवर थियरी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अभी जो भी डाउट्स है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास है? तुम लोगों के पास है क्या बुकलेट? अरे कोई नहीं, पे 2 बुकलेट होगा तो मेरा उनके पास नहीं है, क्या करोगे? हाँ हाँ, मारा पर नहीं बोले तुम लोगों के पास। हाँ देखो है बिल्कुल। इसमें क्या स्टेट ऑफ मैटर? एक मिनट, कितने लोगों को डाउट्स पूछने हैं? ऑनेस्टली हाथ खड़ा करो। हाँ, अब जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो कोऑपरेट, उनमें से कितने लोग कोऑपरेट करना चाहते हैं डाउट डिस्कशन के लिए? जो नहीं करना चाहते वो दे आर फ्री टू गो आउट, बाहर जा सकते हैं। कोऑपरेट करने का मतलब क्या है? शांति रखना। जो डाउट डिस्कस किया जा रहा है वो क्वेश्चन पढ़ो, मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो सुनो, कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो करो, लेकिन प्लीज आपस में गड़बड़ मत करो। ये एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। जो भी डिस्कशन होता है, फिर वो बुकलेट के क्वेश्चन का हो या फिर पेपर का हो, डिस्कशन में शांति की जरूरत बहुत होती है। क्योंकि डाउट 2-4 लोगों का होता है, बाकी लोग सोचते मेरा क्या संबंध है ना, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस। मदद नहीं करो, डिस्टर्बेंस बहुत होता है, मुझे भी बहुत चिल्लाना पड़ता है, उनको भी सुनाई नहीं देता, सब गड़बड़ होता है, एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। इसलिए अगर आप नहीं कोऑपरेट करना चाहते तो यार, मतलब मैं डांट नहीं रहा हूँ, बाहर जाओ तो कैसा अच्छा रहेगा ना, बाकी लोग तो कम से कम सुन पाएंगे। समझा? तो अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आपका एक ही कर्तव्य है, क्या? जब मैं कोई क्वेश्चन का रेंज बोलूंगा, अगर उस रेंज में आपको डाउट है, हाथ खड़ा करके क्वेश्चन नंबर बोल दो। आपस में जो डिस्कशन करना था उसका समय अभी खत्म हो चुका है। तुम्हें आया क्या, उसको आया क्या, उसको आया क्या, खत्म। अगर तुम्हें डाउट है, तुम्हें पता है, तुम्हें मार्क किया रहेगा मेरा डाउट है, तो हाथ खड़ा करके क्वेश्चन नंबर बोलना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। मैंने अगर कुछ पूछा उसके बारे में तो बोलना चाहिए। क्या बोला, समझा? मैं सेल लेके आ रहा हूँ, तब तक इतना बड़बड़ करना करो, लेकिन वापस आने की बात मत करो। प्लीज राज, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 6 to 10, हाँ 6, हाँ। Without the following arrangement in the correct order: thermal energy, gas more than liquid more than solid. थर्मल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, मतलब सब्सटेंस की मॉलिक्यूल्स। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी? गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। और इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम किसमें रहेगा? कहने का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल स्टेट मतलब किया जो जाता है वो बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन और बैलेंस बिटवीन द टू। काइनेटिक फॉर सॉलिड क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम। गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्स मिनिमम, और लिक्विड के लिए दोनों इंटरमीडिएट। ठीक है, समझा? 10 तक 10। हाँ, तो इसमें देखो, बलून के केस में हमेशा याद रखना इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? सेम होता है।
सब लोग ये पॉइंट अच्छे से समझो कि कोई भी बलून हो, जब तक एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर सेम नहीं होता तब तक वो बलून स्टेबल रह सकता है क्या? नहीं। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वो दब जाएगा, अंदर का ज्यादा हो तो फट जाएगा, है ना। अब दोनों का प्रेशर सेम है, एक्सटर्नल प्रेशर वैरी होता है क्या? तो इंटरनल भी वैरी नहीं होगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मतलब कौन सा लॉ? आंसर वही है, नहीं कुछ भी क्या। 10 के लिए चार्ज दिया, 9 के लिए बॉइल दिया गया, समझा ना। 10 तक कोई डाउट? 8 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट सीक्वेंस। डायपोल डायपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन परमानेंट डायपोल। सही है क्या दक्ष? सही है गलत है? हाँ सही मतलब ट्रू। पार्शियल चार्ज possessed by these dipoles is always equal to unit electronic charge। गलत है मतलब false। Dipole dipole interaction is weaker than London force। Dipole dipole stronger तो लिखा भी है आयन आयन, लेकिन आधा भी गलत होगा तो गलत ही माना जाएगा ना। F/2 नहीं है ना आपके ऑप्शन में। हाँ अभी मैंने क्या बोला? आपको डाउट है तो मुझे पूछो, गड़बड़ मत करो। बताओ एक मिनट। In second statement, what are they exactly trying to do? हाँ, partial charge possessed by these dipoles is always equal to unit electronic charge का मतलब ये है कि अगर तुमने HCl लिया तो हम क्या लिखते हैं? डेल्टा नेगेटिव, सॉरी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो ये जो डेल्टा का जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, उससे बड़ा होता है या कम होता है? वो बोल रहे बराबर होता है, समझा? मतलब जो +1 -1 NaCl में इट इज व्हाट? यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज +1 -1। HCl में इट इज लेस देन दैट, तो इसलिए वो गलत है, समझा क्या? हाँ जो भी आपको डाउट है मुझे पूछना, आपको सिर्फ प्लीज गड़बड़ मत करो। 10 तक हो गया, 11 to 15। हाँ कौन सा? 13। हाँ 13। हाँ सुनो सुनो सुनो, 13 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उन्हें पूछा क्या है, देखो द रिलेशनशिप विच इज शोन इन द फिगर। रिलेशनशिप मतलब वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप दिया है कि नहीं, V1 लेस देन V2 लेस देन V3। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने क्लास में भी वही तो किया था, एक तो वर्टिकल लाइन ड्रॉप करेंगे या हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉप की तो उस लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा? प्रेशर, मतलब चार्ल्स लॉ। तो आइदर चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, दोनों में से एक लॉ लगा के यू कैन डिटरमिन दैट ये रिलेशन, समझा? 15 तक 16 to 20। 18। Pure hydrogen sulfide is stored in a tank of 100 liter capacity at 20 degree Celsius and 2 atmospheric pressure। हाँ तो इसमें PV is equal to MR निकाला कि तुम्हें नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे इनटू मोलर मास H2S। हाँ तो 34 रहेगा ना उसका, 32 + 2, तो नंबर ऑफ मोल निकाल के इनटू 34 करना पड़ेगा, ठीक है? क्या झालं पुष्कराज? हाँ 19। Add NTP, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 लगाना पड़ेगा ना तुम्हें। NTP मतलब टेम्परेचर और प्रेशर बता दिया उन्होंने, और वॉल्यूम भी बता दिया। और सेकेंड कंडीशन में क्या क्या बता दिया? टेम्परेचर और वॉल्यूम बता दिया, सॉरी टेम्परेचर और प्रेशर बता दिया। तो 6 में से 5 चीजें बताई हुई कि नहीं? P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, वो लास्ट जो है वो आ जाएगा। 20 तक a bubble of air is underwater at temperature 15 degrees Celsius and the pressure 1.5 bar. If the bubble rises to the surface where the temperature is 25 degrees Celsius and the pressure is 1 bar, what will happen to the volume of the bubble? तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है ना, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। तो आपको क्या पूछा है? V2 by V1 रेशो निकालना है ना आपको, कि वॉल्यूम विल बिकम ग्रेटर बाय व्हाट फैक्टर और लेसर बाय व्हाट फैक्टर, जो भी रहेगा, समझा क्या? ध्यान में क्या रखना है? टेम्परेचर को इसमें केल्विन में कन्वर्ट करके डालना।
है कि नहीं? वो 288 और ये 298 ऐसे डालना पड़ेगा, ठीक है? ये कंबाइंड गैस की लॉ ही है। हाँ 20 तक आइए प्लीज। 21 to 25, 23 में 2.5 लीटर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस कंप्रेस टू 500 ml कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। किसका डाउट है ये? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लॉ कौन सा लगेगा? तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 कितना है? 1 बार। V1 2.5 लीटर मतलब 2500 करेक्ट ml इज इक्वल टू P2, वही कैलकुलेट करना है, और V2 500। तो तुम्हारा P2 अलग, ये क्वेश्चन उस दिन शीट में था जो मैंने आपको सॉल्व करवाया था, है ना? तो P2 कितना हो जाता है उसमें? देखो वॉल्यूम 1/5 किया है तो प्रेशर 5 टाइम्स हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी उसी को कहते हैं ना, प्रेशर 5 टाइम्स मतलब 5 बार हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं? 5 बार मतलब बढ़ा कितने से? 4 से बढ़ा कितने? कितना ओरिजिनल कितना था? 1। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? डेल्टा P डिवाइड बाई P इनिशियल इंटू 100। डेल्टा P 4 हो गया डिवाइड बाई 1 इंटू 100 तो 400 हो जाएगा। समझा क्या? 24। हाँ तो इसमें देखो बॉइल्स का लगेगा क्या इस क्वेश्चन में मतलब इस सिनेरियो में बॉइल्स का लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि हम एयर को अंदर भर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल को ही चेंज कर रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये क्या है? इट हैपेंस बिकॉज मास ऑफ एयर इज नॉट कांस्टेंट। समझा कि नहीं? इसमें जो 4 लॉ है उसमें से कोई लॉ नहीं लगेगा, 3 लॉ जो भी है, क्योंकि हम इसमें सब कुछ ही चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम भी चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल भी चेंज कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ 25 में फर्स्ट ऑप्शन है विथ 10 to the power 6। स्टैंडर्ड दोन्ही कडे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। स्टँडर्ड मध्ये प्रेशर 1 बार आणि नॉर्मल मध्ये प्रेशर 1 ऍटमॉस्फियर। काल आपण ते लिहिलं नाही, त्यामध्ये बॉइलिंग पॉइंट मध्ये पण तेच आहे की नाही? स्टँडर्ड बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार आणि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे एक्सटर्नल प्रेशर 1 ऍटमॉस्फियर। नेहमी लक्षात ठेवायचं, नॉर्मल म्हणजे ऍटमॉस्फियर आणि स्टँडर्ड म्हणजे बार। कळलं? गेल युसेक्स लॉ कोणता? गेल युसेक्स लॉ इकडचा का तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम नाहीये ना, इन्फ्लेशन पे टायर फुलतोय ना। एक तो कॉम्बिनेशन ह्याच्यामध्ये नाही का, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन मध्ये रिएक्शन मध्ये नाही का येतो। हाँ यस। अरे जर गेल युसेक्स लॉ लावायचा असेल तर व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट पाहिजे, टायरचा व्हॉल्यूम वाढतो ना, मग कसं लावणार गेल युसेक्स लॉ? हाँ मग प्रेशर कॉन्स्टंट आहे पण नंबर ऑफ मोल चेंज होतात। कोण म्हणाला प्रेशर कॉन्स्टंट? हाँ मग नंबर ऑफ मोल चेंज होतात। अरे हवा भरतो ना आपल्याला, ते असलेल्या हवेत फुलवतो का? अजून हवा भरतो ना आतमध्ये, म्हणजे नंबर ऑफ मोल पण चेंज झाले, व्हॉल्यूम पण बदलला, नंबर ऑफ मोल पण बदलले, प्रेशर आणि टेम्परेचर कॉन्स्टंट। हे फार तर एव्होगॅड्रोचा लावू शकतो, V1 by V1 is equal to V2 by N2। बरोबर का नाही? हा बरोबर। 25 तक 26 to 30 27। तो इसमें 500 ml 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है ना? नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, प्रेशर कांस्टेंट। तो कौन सा लॉ? चार्ज लॉ। V1 by T1 is equal to V2 by T2। तो V1 500, T1 300, V2 3 या 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 into 500 डिवाइड बाई T2 आएगा कि नहीं? आएगा। 27 तो यही था, 28 है अराउंड। हाँ किसका वोट है? 28। हाँ तुम्हारा भी है। हाँ ये जितेश तुम बताओ, ये कौन से लॉ की बात हो रही है? पहली बात प्रेशर कांस्टेंट रखना है।
हाँ, कुछ मेंशन नहीं किया तो ये प्रेज्यूम प्रेशर कॉस्ट, तो कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ, ये जो अभी हमने बात की V1 by T1, V2 by T2, इज अ डिराइव्ड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ. व्हाट इज द फंडामेंटल फॉर्म जो हमने लिखा था ना?